Kapil ji, I think it's 4 o'clock. We can start. We have enough Thank you, quorum sir. of the members present. Let's not make everyone else wait. I would absolutely agree with you, and I think we have about 64, 65 members. I would start first by welcoming all the members of cold storages owners, state cold storage members, and state office bearers, and federation members. Thank you for being here with us. Thank you for attending this webinar. What we intend doing in this next 1 hour journey is to understand how cold storages would stand to gain post COVID situation. How this COVID situation has impacted all of us is something which is well known to you. You all analyzed your business issues and problems. I would look at it from the electrical, from the operational point of view. I would stand corrected because I am not an authority. I have done with my team some of the best research we could, and we have tried to present this to you. May I now request Rajesh ji as head of the Association of Federation of Cold Storage Association to address us, to guide us how to take it forward, and post his address, we will take it forward. Sir. Rajesh ji, may I request Thank you, Sahab. First of all, I'd like to thank all the Electrotham people for conducting this webinar during the lockdown period, and it's a good opportunity for your company to come up with what's happening now. And as solar will be the talk of the thing after the COVID, because now the people will be more now concentrating on cutting off their expenses, because all the new scenario will come up globally as we have suffered heavy losses financially. So all the companies should think over in a new manner how to work with the COVID and after COVID conditions. And I would like to also welcome all the office bearers, our Senior Vice President, Ashish Guruji, Mukesh Agarwalji, Secretary, National Coordinator Arvind Agarwalji, Gubbaji, and all the other office bearers who are joining this. All the members of the Federation, all the supporters of the Federation, I welcome you all. You are sparing your time, but please do watch all the things and deeply, and just go on listening and also ask some questions also. A good questionnaire should be there. Good. Yes. Electrotham India would first give a big round of applause for all the COVID warriors, which we consider as cold storage industry as one of the biggest contributor towards the food chain. A big round of applause for you, sirs. You have done a commendable job in this lockdown period. So, as we go forward in this, we would welcome Mr. Praveen Kumar also, who has joined us from SIDBI. कोल्ड चेन इंडस्ट्री, अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें कोल्ड स्टोरेज एक बहुत बड़ा और बहुत अहम हिस्सा है। और कोल्ड स्टोरेज किसान की फसल का सब सही लाभ उसको दिलवाता है, ताकि में जब आके वो भंडारण करते हैं, जब वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, और कोल्ड स्टोरेज से जब वो अपॉर्चुन टाइम पे वो प्रोडक्ट मूव करते हैं अपना, तो उससे जो एडवांटेज किसान को मिलता है और जो फ्रेश फूड हमारे टेबल पे आता है, उसमें कोल्ड स्टोरेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी इस हिस्से, इस भागीदारी को, इस कंट्रीब्यूशन को मानती है। आज कल जब हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुन रहे थे, तो कुछ जो पॉइंट समझ में आए उनमें ये था कि भाई
फाइनेंस मिनिस्टर भी एक नया स्टिमुलस, एक नया फाइनेंशियल पैकेज लेकर आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन के ऊपर वो भी इस समय काफी सीरियसली बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कोल्ड स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 1 लाख करोड़ की फंडिंग उन्होंने फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट उसके लिए दी है। तो ये एक काफी पॉजिटिव स्टेप लगता है। इस स्टेप के मायने क्या है, इस स्टेप में क्या एक्चुअली मिलेगा, ये देखने के लिए तो शायद मंडे जब एक बार रियल फाइन प्रिंट्स आ जाएंगे तो ज्यादा पता चलेगा। 10,000 करोड़ हम देख रहे हैं कि माइक्रो फूड स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लस्टर बेस्ड जो अप्रोच बनाई है उसके लिए उन्होंने एलोकेट किया है। अगेन फाइन प्रिंट्स अवेटेड हैं, बट ये सारी चीजें एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही हैं जो हम पिछले 2 महीने से हमको लग रहा कि आगे क्या, लॉकडाउन तो हो गया, इसके आगे हम कहाँ जाएंगे। बट आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आई एम वेरी श्योर that government of India is looking at cold storages to support farmers, and to support farmers they are trying to strengthen cold storage industry in particular. And now when I look at it, when I look at what next kind of scenario, there are some things which are not to be missed, जिनकी तरफ ध्यान देना हमको बहुत जरूरी है। जैसा हमने सबने देखा होगा और सबने पढ़ाई था कि भाई ग्रिड वालों को, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को काफी नुकसान हुआ है इस पीरियड में। कुछ नोशनल नुकसान है कि शायद इतने की बिजली और बिक जाती, कुछ क्योंकि उनकी एफिशिएंसी जिस पे वो काम कर रहे थे उस पे वो नहीं कर रहे, तो लॉसेस हुए हैं। अब ये लॉसेस लेके वो कहाँ जाएंगे? समवेयर ये लगता है कि अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आप लोग हैं उनके पास उनको आना पड़ेगा फॉर आस्किंग फॉर रेज इन टैरिफ और समथिंग। और इसका एक छोटा सा इंडिकेशन मध्य प्रदेश से आना शुरू हुआ है, जहाँ पे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑलरेडी एक नोटिस जारी करा हुआ है जो 30/5 का है कि 30/5 को वो सुनवाई रखेंगे रिगार्डिंग रेज इन टैरिफ इन मध्य प्रदेश। आई थिंक ये जिसे कहना चाहिए कि इट वाज रिटन ऑन द वॉल, ये था, दिख रहा था कि होगा, कब होगा कैसे होगा वाज अ क्वेश्चन मार्क, बट आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली चाहे हम पसंद करें या ना करें ये होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चर है, दिस इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन ड्रिवन प्राइसिंग। कभी बारिश बहुत तेज हो गई, कभी पैदावार ज्यादा हो गई, कभी पैदावार कम हो गई। अगर हम केवल आलू की बात करें और वो क्योंकि मेरी नॉलेज बाकी सब फील्ड्स में थोड़ी कम है तो मैं आलू की बात कर पाऊंगा। अपने यहाँ शायद भंडारण कैपेसिटी 40 मिलियन टन्स की 40 मिलियन मेट्रिक टन्स की है, और जबकि अगर 16-17 से हम डेटा पकड़ना शुरू करें तो हर साल पैदावार उससे कहीं ज्यादा हुई है। तो somewhere cold storages were flooded with potato, which didn't move out on time, which there were multiple issues which were there. So even last year when we were looking at I think 17-18 was about 51 million metric ton,
आई वुड स्टैंड टू बी करेक्टेड बिकॉज आप लोगों के पास ज्यादा बेहतर डेटा होगा। मेरे पास जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का डेटा बोल रहा है, और उसके बाद 53 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ। भंडारण कैपेसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया और ना कंजम्पशन कैपेसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर जो है वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमेशा डिक्टेट करता आया है, एंड somehow this unpredictable weather has been driving prices of our agriculture, which cannot be controlled. Now, when we look at disruption as the new business norm, so we find that yes, it is going to be there, and disruption is going to be our new normal. Business पहले एक बहुत आराम के ढंग से, अच्छे ढंग से होता था, जहां एक सेट नियम थे पुराने, उस पे काम चल जाता था। आज वो नियम शायद थोड़ा कम काम आते हैं, थोड़ा सा चेंज जो है वो उसकी रैपिडिटी बहुत हो गई है। पर्सनली अगर इलेक्ट्रोथर्म की बात करें या मेरी बात करें, तो हमने कभी ये रियलाइज नहीं किया था कि जो लिकर बार्स हैं या जो स्ट्रीट फूड है, उसके बंद होने से और आलू का कंजम्पशन कम होता है। हमें तो लग रहा था कि हमारे घर में जो आलू आता है दैट इज अ गुड कंजम्पशन, बट व्हाट वी रियलाइज्ड वाज, एंड दिस आर्टिकल in Economic Times gave us an insight that yes, potato is driven by street food. Potato is driven by the chips that are manufactured, and there are a lot of things. One did not know that COVID would affect street food to an extent कि सब बंद हो जाएगा, and it has resulted in less potato being moved in the market. जहां तक डिसरप्शन अगर नया नॉर्मल है, तो एक ही चीज समझ में आती है कि वेरिएबल कॉस्ट कभी भी हमारे हाथ में नहीं थी, ना आगे आने वाली है, बल्कि वेरिएबल कॉस्ट पे अब फ्लक्चुएशन ज्यादा बढ़ने वाला है। हमारे हाथ में केवल फिक्स कॉस्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी उसका एक मेजर कंपोनेंट है, जो हम बात करते आए हैं कि व्हाई नॉट सोलर, एंड व्हाई नॉट सोलर इन दिस टाइम। सो सोलर हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग योर फिक्स्ड कॉस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जितना जहां जिस पे कैपेसिटी प्लांट की सैंक्शन लोड और रूफटॉप अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, वो यूटिलाइजेबल इस समय बन जाती है। जहां तक एनवायरनमेंट का सवाल है, जो अपना सबका एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये कह लीजिए कि जैसे किसी ने लिखा था, बहुत प्यारा लिखा था कि ये धरती हमें पुरखों से मिली हुई विरासत नहीं है, ये हमारे बच्चों से बोरो करी हुई अमानत है। तो हमें तो उस अमानत को लौटाना है, और उस कंडीशन में लौटाना है जिस कंडीशन में हमें मिली थी, या उससे बेहतर करके लौटाना है। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एनवायरनमेंट को संभाल के रखें। ये लॉकडाउन ने हमें बताया कि जो सारी दुनिया भर की स्कीम्स नहीं कर सकी, उतना गंगा का पानी साफ इस लॉकडाउन ने करा दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये एक नॉर्मल है, नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल चीज है। हमारी मजबूरी थी, हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके कारण लॉकडाउन करना पड़ा। बट कुछ जगह पे उसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग थे कि जलंधर से आपको हिमालय की पहाड़ियां दिख रही हैं, गंगा आपको साफ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम चाह रहे हैं, या जो हमारी एक इच्छा है कि भाई हम साफ एनवायरनमेंट देखें, उसका भी फर्क पड़ता है। तो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी आपको साफ एनवायरनमेंट देती है,
और ये एनवायरनमेंट आपको अपने बच्चों की विरासत में छोड़ना है। तो शायद ये आपकी जरूरत भी है, मजबूरी भी है और आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उनको एक नेचर वो दे पाए जो कि लोग जो आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों के पास आए। I understand there are some members who are wanting to have some questions. May I request कि आप अपने questions note कर लें, हम end of the presentation पे इन questions को आपके साथ साथ लेते जाएंगे। जहाँ तक नई टेक्नोलॉजीज का सवाल है, मैं इसे नई तो नहीं कहूँगा, बट ये कई स्टेट्स में आज हमारी रिक्वायरमेंट बन गई है। जैसे डीजी सिंक्रोनाइजेशन है, अगर पावर का जैसे अभी है और जिस हिसाब से कोल का मूवमेंट है पावर के लिए, ऐसा लगता है कि शायद कभी कभी ग्रिड आपका फेलियर आता नजर आए। वो आता है तो आपका डीजी जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। और कुछ स्टेट में जीरो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, वहां पे भी डीजी सिंक्रोनाइजेशन या जो ये डिवाइस अगर आप लगा देते हैं तो आपका एक्सपोर्ट भी रुक जाता है और डीजी सिंक्रोनाइज भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका रिवर्स फ्लो जो डीजी में डीजी से ग्रिड में और वो आता है तो बच जाता है। Secondly, when I look at fuel consumption of a DG in conjunction with solar, नॉर्मली एक डीजी पे पर यूनिट पावर जनरेशन की कॉस्ट जो है वो 18 से 19 रुपए आती है एवरेज में। बट जब हम सोलर के साथ उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं एंड वी ड्रॉ अबाउट 20 to 30% फ्रॉम डीजी, रेस्ट फ्रॉम सोलर, तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो करीब 5 रुपए के नीचे हो जाती है, जिसमें 3 रुपए डीजी की कॉस्ट होती है, 1 रुपए 70 पैसे लेवलाइज कॉस्ट सोलर से बिजली बनाने की होती है। वो मैंने बिना हॉर्टिकल्चर सब्सिडी को काउंट करे हुए 1 रुपए 70 पैसे लिया हुआ। हॉर्टिकल्चर सब्सिडी आप लगाते हैं तो उसमें थोड़ा और फर्क पड़ता है। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, और ये अब आगे चल के कल की रियलिटी बनता चला जाएगा, वो है एडवांस्ड हाइब्रिड सिस्टम। एडवांस्ड हाइब्रिड सिस्टम में जो ये नॉर्मल सोलर का है कि सोलर है फिर उसका इन्वर्टर है, वो आपका पैनल पे आ रहा है और ग्रिड की सप्लाई भी उसी पैनल पे आ रही है, उसके रेफरेंस से आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। कई जगह पे ये डीजी कंट्रोलर और डीजी उसके साथ ऐड हो गए। आगे चलते हुए बैटरी बैंक उसके साथ ऐड होगा और इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक माइक्रो ग्रिड कंट्रोलर जैसे एक कंट्रोलर पूरा ऐड हो जाएगा। ये कंट्रोलर जब ऐड हो जाएगा तो आपका जो कहां से कितना पावर बन रहा है, कहां से आप कितना पावर ड्रॉ करना चाहते हैं, कहां से कितना पावर आपको लेना चाहिए, ये सारी डिटेलिंग आती चली जाएगी। बैटरी को कब आपको चार्ज करना है, कब आपको बैटरी से ड्रॉ करना है, कब आपको डीजी को चालू करना है, कहां से आपको सबसे सस्ता पावर पड़ेगा। ये अभी टेक्नोलॉजी, क्योंकि बैटरी शायद थोड़ी हाई साइड मानते हैं लोग, बट आगे चलते हुए जब आप सेल्फ रिलायंट बनना चाहेंगे ऑन इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, तो दिस एंटायर गambit of technology would naturally help. Now, when I look at it, yes, horticulture subsidy is available on cold storages. It is about 12.25 lakhs if I consider the 100 kilowatt installation, which is available from horticulture department. And we have people who can assist you. We will directly not do that, but we have consultant who can assist you, जो आपके साथ hand holding करके और वो subsidy आपको दिलवाने का कर सकते हैं।
टिपिकली जब मैं कोल्ड स्टोरेज सेगमेंट में बात करता हूं तो क्योंकि सब्सिडी अवेलेबल है इसलिए पेबैक बहुत फास्ट आता है, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। 2 साल के अंदर अंदर का हम पेबैक कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट नेचुरली रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि जब आप एक मेजर पोर्शन दिन के समय अपना सोलर से बना रहे हैं तो ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है उससे। मेरे को काफी हद तक कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों के पास कई सारे सवाल होंगे। एक बार इसके बाद प्रवीण कुमार जी जो सिडबी से ज्वाइन करे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस अगर सामने अवेलेबल है, साथ में अवेलेबल है, तो लगाना आसान होता है, ज्यादा इजी लगता है। इसलिए प्रवीण कुमार जी को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वो आए सिडबी की तरफ से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें कि सिडबी क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर आया है, कैसे एमएसएमई को, कोल्ड स्टोरेज सेगमेंट को सिडबी असिस्ट कर सकता है और कहाँ-कहाँ सिडबी के ऑफिसेस ऑपरेशनल हैं, वहाँ पे हाउ कैन दे एंड दी जनरल मैनेजर्स कंसर्न, उनके नंबर्स और बाकी सारी डिटेल। प्रवीण कुमार जी, काइंडली टेक अप। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रोथर्म सोलर लिमिटेड का, स्पेशली कपिल जैन जी का इतना अच्छा वेबिनार प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, और सारे एंटरप्रेन्योर को और बिजनेसमैन को, और जो कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं हमारे राजेश गोयल जी, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रीशियस टाइम देने के लिए इस प्रोग्राम के लिए। कमिंग टू द पॉइंट, ऑलरेडी हमारे कपिल जी ने काफ़ी अच्छा एक भूमिका बता दी कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्टिमुलस आ रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग वगैरह बनेंगे। लोग जो है अभी प्लान बनाएंगे कैसे उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। सोलर भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जहाँ पर लोग जो है अपने फिक्स कॉस्ट को जो है बचाएंगे। तो मैं अपने पॉइंट में जाता हूँ। यू आर अवेयर ऑफ दैट कि सिडबी जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली जो है सिडबी को इस्टेब्लिश ही किया गया था एमएसएमई के लिए बनाने के लिए, एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, उनको फंडिंग के लिए, उनके रिफाइनेंसिंग के लिए, उनको हैंड होल्डिंग करने के लिए। कमिंग टू द स्लाइड, इफ यू सी, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 दिन 4 दिन पहले ही एमएसएमई का डेफिनेशन, जो बहुत ही दिनों से रिक्वायरमेंट थी चेंज करने की, उसके डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन 2006 में आई थी, उसको चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, और ये काफ़ी बड़ा दायरा बन गया है। अब अगर माइक्रो इंडस्ट्री को देखें तो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो माइक्रो के अंदर आ जाता है, और टर्नओवर आप देखें मेथड तो 5 करोड़ तक के टर्नओवर को भी जो है हम माइक्रो के अंदर करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर देखें तो 50 करोड़ तक के टर्नओवर के कंपनी को हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, 100 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी को हम लोग मीडियम स्केल इंडस्ट्री के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं। इसका जो फायदा है ये है कि काफ़ी सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंटरप्राइजेज जो अभी लार्ज में कवर हो रहे थे, लार्ज के अंदर आ रहे थे, वो सारे एमएसएमई के दायरे में आ गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम देखें हमारे पास काफ़ी सारे वेरियस स्कीम्स हैं, और 1 बाय 1 स्कीम के ऊपर मैं जाऊंगा। जो हम प्रोडक्ट वाइज स्कीम बना रहे हैं, इंडस्ट्री वाइज स्कीम बना रहे हैं, और रिक्वायरमेंट के बेसिक पे हम जो है कस्टमाइज कर रहे हैं। कमिंग टू दिस स्टार स्कीम, अगर आप स्टार स्कीम में हम देखेंगे तो ये बेसिकली रूफ टॉप सोलर पीवी प्लांट के लिए है, और इसमें जो बेसिकली टारगेट कस्टमर हैं हमारे वो है एमएसएमई। इसमें हम दोनों तरह के कस्टमर को हम फंडिंग कर रहे हैं, चाहे वो न्यू हो हमारे बैंक के लिए और चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। जो सोलर रूफटॉप प्लांट लगेगा वो एटलीस्ट 25 किलोवाट से स्टार्ट हो और 500 किलोवाट तक मैक्सिमम कैपेसिटी जो अपने छत पे वो लगाना चाहे तो हम कर सकते हैं। जो अट्रैक्शन है इस स्कीम का वो ये है कि हम 100% फंडिंग कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस पर्सन जो है अगर 20 to 25% एफडी अपना पार्क करते हैं सिडबी में तो, और अदरवाइज इफ दे आर नॉट रेडी, दे वांट फंडिंग अप टू 75%, तो 25% कंट्रीब्यूशन ला करके भी वो फंडिंग ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो मैंने बताया था अभी कि न्यू टू बैंक वो भी हो सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिनकी 24 महीने की हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा 4 ईयर की विंटेज रिक्वायर्ड है, मतलब 4 साल के ऑपरेशन उनके होने चाहिए,
और एटलीस्ट 2 साल हमारे अगर रजिस्ट्री कस्टमर है तो 2 साल की कैश प्रॉफिट होना जरूरी है। और सेल्स जो है एटलीस्ट कम से कम स्टेबल हो। स्टेबल के मीनिंग थोड़ा मोड़ा अप डाउन होगा तो चलेगा, बट बहुत स्लाइटली डाउन नहीं होना चाहिए। लोन टेन्योर पीरियड अगर आप देखेंगे तो 3 to 7 ईयर्स है, मतलब 7 ईयर तक मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर आपको कैश फ्लो वगैरह रखना है अच्छा तो आप 7 ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पे बैक कर दें, क्योंकि इसकी वायबिलिटी 3 to 4 ईयर होता है, तो आप 3-4 साल में भी पे कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट पर से। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज सर। तो इसमें सेफ गार्ड है कि हम जो है इसमें ऑन साइट सोलर पावर प्लांट ही कर सकते हैं, ऑफ साइट सोलर प्लांट को हम फंडिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई सोलर पार्क वगैरह हम फंडिंग चाह रहा हो, इन्वेस्टमेंट लेना, तो वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑन साइट जो रूफ टॉप साइट पे लगाते हैं तो उसमें ही हम फंडिंग कर रहे हैं। कोई भी हम किसी भी तरह का यूज्ड मशीन और रिफर्बिश्ड सोलर प्लांट, इन सबको हम फंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जनरेशन के काफी सारे इश्यूज होते हैं। सो ओनली न्यू सोलर प्लांट पे ही हम फंडिंग कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम आते हैं तो काफी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 8.70 से लेके 9.40 तक है, जिसमें डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनल रेटिंग किस तरह से है और अगर बशर्ते आप एफडी हमें देना चाहें। कमिंग टू दैट, अगर आप 25% प्रमोटर कंट्रीब्यूशन देंगे और आप चाहेंगे कि 75% ही फंडिंग हो हमारी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा स्लाइटली अप है, दैट इज 9.77 to 10.04%। तो हमारे पास काफी सारे मतलब ऑल ओवर पैन इंडिया में हमारी ऑफिसेस हैं, हमारे अहमदाबाद में से लेकर के ऑल ओवर इंडिया में हमारे 10 रीजनल ऑफिसेस हैं, जहां पर हम आप ये नंबर देख पा रहे होंगे। ये हमारे जनरल मैनेजर हैं जो रीजनल इंचार्जेस हैं, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर से बैठे हैं। उसके अंदर जो है ऑल द ब्रांचेस कवरिंग ऑल द स्टेट्स, एवरी स्टेट में हमारे पास और एवरी इंडस्ट्रियल प्लेसेस में हमारे पास ऑफिसेस हैं। इवन राजस्थान में अगर आप देख लें, आप हरियाणा देख लें, दिल्ली देख लें, एवरीवेयर, गुजरात, एवरीवेयर हमारे पास ऑफिसेस हैं। और हम मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है एमएसएमई इंडस्ट्रीज को कवर कर पा रहे हैं और प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हम लोग काफी डिजिटल हो चुके हैं। सो टाइम यही है कि आज के डेट में इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू ऑफिस एंड आप सारा पेपर जमा करें। सो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। देयर 2 पोर्टल्स है यहाँ पर, पीएसबी एक बैंक लोन के थ्रू एक पोर्टल है, ऑनलाइन अपना सिडबी का पोर्टल है, जिसके थ्रू आप अगर लोन अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पर भी आप अपने सारे डिटेल डिजिटली डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिजिटली उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी और उसके स्टेटस भी मालूम चलेंगे, और ब्रांचेस से आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे लोन का रिक्वायरमेंट क्या है और क्या उसके स्टेटस हैं, क्या उसके अपडेट्स हैं। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for your wonderful. Okay, can you hear me? Yeah. Yes. Okay, मिस्टर प्रवीण जी, अभी आपने जो बताया हम लोगों को, उसके बारे में सीधी बात करूंगा मैं। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, आप लोग सारे रेट्स वगैरह, आपने इंटरेस्ट रेट्स का बहुत अच्छे पैकेजेस निकाले, हर चीज की है। मेरे को तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब भी मैं आप लोगों के पास आता हूँ या कभी भी कुछ करता हूँ, पेपर वर्क इतना होता है आप लोगों का, कभी भी आप लोग उस पर नहीं कर रहे हो कुछ भी। हम लोगों को 0.25 0.30 से कोई फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्रियलिस्ट को। आपको समझनी चाहिए ये वाली बात। हम लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, 3-3 महीने 4-4 महीने हमारे जूते घिस जाते हैं, हम लोगों को लोन नहीं मिलता है। प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। मैं कहता हूं चलो आप प्रवीण जी, आप कह रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरे फैक्ट्री में आप लगा दीजिए अपना सोलर प्लांट। लोन की बात नहीं, आप 0.25 पैसे एक्स्ट्रा भी ले लेंगे ना, हमें सीए के पास भाग रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, मतलब पेपर वर्क में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आप कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? मैं पॉइंट पे आता हूँ सर। एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है सिडबी के साथ तो। नहीं, सिडबी के साथ नहीं, मेरा सभी के साथ रहा है सर। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ प्रवीण जी, आप सिडबी से हैं, इसलिए मैं आपसे ये भी बात कह रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब इतना दिक्कत आता है पेपर वर्क में हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को कि पूछिए मत। हम लोगों को अल्टीमेटली सीए के पास जाना पड़ता है अपने पेपर वर्क के लिए, ताकि भैया वो सॉल्व करे, और वो कमीशन लेता है 5 to 7%। सर ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 13 साल से बैंक से जुड़ा हुआ हूँ और एमएसएमई की हमेशा कंप्लेन रहते हैं कि पेपर फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा होता है। और ये है सर, हकीकत है कि पेपर फॉर्मेलिटी बैंकों में थोड़ा ज्यादा रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसी पे वर्क कर रहे हैं सर। क्योंकि क्या है, ये चीज अभी जरूरत हो गई है। आज के डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है
कि वो इतना बैंक के पीछे आगे घूमे, इतना पेपर फॉर्मेलिटी तैयार कर पाए और इसके ऊपर वर्क कर पाए। तो इसी पॉइंट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और हम लोग चाह भी रहे हैं। आप देखेंगे जितना भी हमने 4-5 स्कीम के बताया, इंक्लूडिंग स्टार स्कीम जो मैंने बताया आपको सोलर प्लांट के लिए, उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ही सिंपल है। एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, 2-3 चीजें फॉर्मेलिटीज है, एक चेकलिस्ट है। मेरी एक गुंजाइश ये रहेगी सर, एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं या कभी भी बैंक के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं, आप एक उनसे चेकलिस्ट मांग लीजिए कि सर आपके क्या चेकलिस्ट है, आप मुझे प्रोवाइड कर दें। और जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट को अगर आप प्रोवाइड कर देंगे, आई डोंट फाइंड कि अगर आपको कोई भी बैंक जो है वो जल्दी लेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि कभी क्या होता है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि एमएसएमई जो होते हैं वो चेकलिस्ट उतना ध्यान से नहीं देख पाते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है, उनके छोटे एमएसएमई में ये फैक्टर्स होते हैं कि कई बार पेपर जो है उनके पास सारी एक टाइम में अवेलेबल नहीं हो पाती है। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जब भी कोई भी ब्रांच में अप्रोच करें तो एप्लीकेशन के साथ साथ जो उनके चेकलिस्ट हैं उनको आप एक इंश्योर कर लें कि सर हमने सारे चेकलिस्ट आपके पॉइंट टू पॉइंट हमने आपके पास जमा कर दिए हैं और नाउ अब आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपके एक्सपीरियंस होंगे, हो सकते हैं अच्छे खराब, जो मुझे पता नहीं है, बट हम लोग इधर लास्ट 3 साल में हम इसी पे वर्क कर रहे हैं कि हमारा टर्न अराउंड टाइम कैसे इंप्रूव हो, किस तरह से हम काम करें जिससे हमारा टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव हो। उससे हमारी भी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और आपको तो फायदा मिलेगा ही अगर आपको लोन टाइमली मिल जाता है। वी आर वर्किंग ऑन दैट सर एंड वी आर श्योर, वी आर होपफुल कि आपको अच्छा से अच्छा हम सर्विस देंगे। थैंक यू सो मच सर। प्रवीण जी, जो चेकलिस्ट आप बता रहे हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 26 पॉइंट्स, 26 पॉइंट होते हैं। मेरे वही एक क्वेश्चन आ रहा है दोबारा से, वो चेकलिस्ट पूरी नहीं पाती हम लोगों से। आप बात समझें, पेपर वर्क के लिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप पेपर वर्क ही इतना होता है। 26 की चेकलिस्ट आप जो कह रहे हैं मेरे को, कि जब मैं आपने लोन लिया, मैंने हर चीज में दे रहा हूँ, जमीन दे रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो 26 पॉइंट्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो बैलेंस शीट आप मांग रहे हैं, वो मैं 3 साल की आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, मतलब इट्स एन ह्यूज लिस्ट। 26 लिस्ट वो पूरी नहीं हो पाती है। नहीं सर, अगर सोलर प्रोजेक्ट में देखेंगे, सोलर प्रोजेक्ट में इतनी पेपर फॉर्मेलिटीज ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार ब्रांच में विजिट करें प्लीज, और आप स्टार स्कीम के अंदर जो है जाके एक बार आप उनके स्टार स्कीम के जो रिलेटेड, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो चेकलिस्ट वगैरह है, आप ले लें उनसे और देख लेगा, ट्राई करके। चलो प्रवीण जी, मैं आप ही के ऑफिस आता हूँ, आप ही से डिस्कस करूंगा। और बताइए। श्योर सर। ठीक है ना सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू सर। सर गोविंद रामजी गुप्ता बोल रहा हूँ। हेलो, माइक को थोड़ा पास में लाइए राम जी। सोलर प्लांट के नेट मीटरिंग का यूपी में क्या है? सर मैं इसका जवाब देता हूँ। यूपी में नेट मीटरिंग इस समय अलाउड नहीं है। जो एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो अलाउड नहीं है। हालांकि लास्ट टाइम मेरी जब आप लोगों के यहाँ पे बात चल रही थी तो एसोसिएशन इज वांटिंग टू मूव पेपर्स विद गवर्नमेंट asking for net metering. Currently it is not allowed. If I look at it, look at the project without net metering, even then the project would make sense. कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट बनता है। अगर उसमें डिटेल्स आपको कुछ चाहिए होंगी तो हमारे यहाँ से राजेंद्र जी हैं, he can visit your cold storage and explain the financial nitty-gritties to you. ठीक है सर, भेज दीजिए। हाँ जी, राजेंद्र प्लीज जरा नोट कर लीजिए एंड यू मस्ट विजिट। सर प्रवीण जी, यस सर। मैं इंदौर से हूं सर। यहाँ पर मुझे नियर बाय सिडबी का ऑफिस कहाँ रहेगा? आपके उस पर भोपाल नहीं आया है सर। है सर, भोपाल में भी हमारे हैं और इंदौर में भी हमारे ऑफिसेस हैं। मुझे इंदौर का एड्रेस प्लीज बता दीजिएगा। मैं सर आपको सजेशन ही दूंगा, कैसे मुझे ये एड्रेस याद नहीं है पूरे, कोई बात नहीं, बट आप अगर सिडबी के साइट पे चले जाएंगे, वेबसाइट पर। हाँ ठीक, थैंक यू। सिडबी साइट पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस करके वहाँ आता है मॉड्यूल, वहाँ पर आपको सारे ब्रांचेस के एड्रेस, उनके ब्रांच इंचार्ज के मोबाइल नंबर, एवरीथिंग यू विल गेट सर। थैंक यू, थैंक यू। रविंद्र जी, मैं कोटा से बोलता हूँ। हेलो। हाँ जी, कोटा से बोलता हूँ। हाँ जी, कोटा राजस्थान। हाँ जी। कोटा राजस्थान के लिए कोई एड्रेस दीजिए।
जयपुर का कांटेक्ट करें, कहाँ करें? प्रवीण जी, कोटा के लिए जयपुर का एड्रेस। बिहार से बता रहा हूँ। बिहार में इसका ऑफिस कहाँ पे है? लगता है प्रवीण जी को आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। प्रवीण जी, मैं सभी मेंबर्स के लिए बता दूं कि अभी प्रवीण जी ने श्रीनाथ एग्रो के जवाब में यही बताया था कि सिडबी की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे पूरी इंडिया के ब्रांच ऑफिसेज, वहाँ के मैनेजर्स और उनके मोबाइल नंबर्स की पूरी डिटेल मौजूद है। तो अगर किसी भी मेंबर को किसी भी सिडबी ऑफिस का नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। ट्रू सर। Any other question relating to SIDBI? Arvind ji, please unmute yourself. सर मुझे आवाज नहीं आ रही है। I got it, Praveen ji. There was another query regarding the contact address for Kota, Jaipur. So I have repeated your previous answer to all the members. Okay. हेलो। So we would now like Siddharth Bhandari ji to say a few words and close the meeting. Kapil ji, is Bhandari ji there? सिद्धार्थ जी इज देयर एंड आपके आने से पहले हमने मुकेश सर को इंट्रोड्यूस किया था। मुकेश सर इज एंटरप्रेन्योर सिंस 1983, very powerful person in electrical engineering field, and he has his own personal experience in cold storage also. So can I request Mukesh sir to say a few words? Mukesh sir, can you hear me? नमस्ते जी, मेरा नाम मुकेश भंडारी है और मैंने ये इलेक्ट्रोड्रम चालू किया था और ये मेरे लड़के सिद्धार्थ संभाल रहे हैं। सिर्फ मैं एक छोटा सा मेरा एक वो एक्सपीरियंस इसमें था आपके कोल्ड स्टोरेज के अंदर। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं इंदौर से हूँ मैं, और जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर मैंने काम किया हुआ है और मैंने कोल्ड स्टोरेज में काम किया, मैंने दूध को लेकर भी काम किया, तो मेरे को पूरा कोल्ड स्टोरेज का आइडिया है। अब आपने और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे कोल्ड स्टोरेज में यूज करेंगे तो हमारे पावर जनरेशन की कॉस्ट भी कम होगी। उसके अलावा जैसे कपिल जी ने कहा कि हम हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अच्छी धरती दे पाएंगे। तो इसमें आप जरूर ये लगाइए कोल्ड स्टोरेज के इसके लिए, ताकि आपका जो डीजल का कंजम्पशन कई बार होता होगा वो कम रहे और आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैं आज पढ़ रहा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो करीब 28% एनर्जी कॉस्ट होती है। तो वो आपकी एनर्जी कॉस्ट जरूर कम आएगी, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। हेलो, आवाज आ रही है? ये श्रीनाथ एग्रो से सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सो सर, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू, तो आप आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। मुकेश जी का कांटेक्ट नंबर या इनका, वो इंदौर से है, मैं भी इंदौर से ही हूँ, यदि मिल जाए मुकेश जी का या सिद्धार्थ जी का कांटेक्ट नंबर। सर मैं आपको चैट में रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक, थैंक यू। कपिल जी अनम्यूट करिए अपने को। ये प्रेजेंटेशन की एक कॉपी
थ्रू फेडरेशन आप सबके पास भिजवा दूंगा। उसमें सिद्धार्थ सर का भी नंबर है और बाकी कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं, तो शेयर दैट, वी विल इमीडिएटली शेयर दैट। फ्रॉम पंजाब मिस्टर मनजोत सिंह मरवाहा, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके। मंजूर जी। मंजोत सर। मनमोज जी अनम्यूट कर दीजिए अरविंद जी मनजोत जी को। वो बोल रहे होंगे, वो शायद उनकी आवाज नहीं आ रही होगी। मनजोत जी बोलिए फिर से। अभी अनम्यूट नहीं हुए वो। अभी उनका जो मनजोत सिंह मरवा जी अनम्यूट नहीं हुए अभी। हो गए। मनजोत जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपका प्रश्न नहीं सुन पाए हम लोग। तो शायद दिख ही नहीं रहे हैं। और किसी सदस्य का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये D117 जो सर है उनका क्वेश्चन है। सर आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाइन 867। हेलो। यस अरविंद जी। हाँ राजेश जी। मैं ये कह रहा था कि मुझे को 5:15 में दूसरी मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो कपिल जी कुछ सवाल नहीं ले रहे अपने बारे में, तो बताते ही कि क्या इनका रेट्स रहेंगे, क्या आगरा में यूपी में पॉलिसी क्या रहेगी, नेट मीटरिंग के एब्सेंस में कैसे आगे काम चलेगा, यूपी में जो इंक्वायरीज है उनको ये कैसे सेटल डाउन करेंगे। सर बहुत ब्रीफली लेता हूं मैं। देखिए, दो चीजें हैं। जहां तक रेट का सवाल है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि छत कैसी और क्या चीजें, और बॉल पार्क फिगर सबके लिए 33-34 रुपीज टू 50 रुपीज के बीच में बहुत वेरिएशन आता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है, आप इंडिकेशन दे दीजिए। राजेंद्र सैनी जी वुड कम टू यू, मीट यू, डिस्कस विद यू 1-to-1 बेसिस। जैसे इंदौर में है तो मिस्टर कृष्णा यादव विल कम ओवर एंड मीट यू। गुजरात में कृष्णा यादव इज लुकिंग आफ्टर द मेरा ये कहने का मतलब है जैन साहब, मैं आपको बीच में इंटरफियर कर रहा हूँ कि यूपी में नेट मीटरिंग नहीं है जी। हाउ विल यू प्रूव योर payback without net metering? What will be the modus operandi of your work in UP? जब नेट मीटरिंग नहीं है वहां आप कैसे निकालेंगे कि लोगों को वायबिलिटी कैसे निकल के आएगी जो अपना सोलर लेंगे? क्योंकि मैं एक बात जान रहा हूं कि पूरा केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनने को कह रही है। मिशन आ रहा है आत्मनिर्भर मिशन, तो सोलर लगाना इज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर। कि ठीक है, आज अगर बिजली कम मिलती है या ज्यादा मिलती है तो मेरा 100 किलोवाट का मिनिमम या 200 किलोवाट का एक मेरे पे भी जनरेशन प्लांट है एंड इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर मिशन। तो ये तो बड़ा एक वेलकम स्टेप है। तो हाउ डू यू सी कि जिन स्टेट्स में नेट मीटरिंग नहीं है, जैसे कि सबसे बड़ा स्टेट यूपी है जहां आज 2000 कोल्ड स्टोरेज लगे हुए हैं, और आज हम देखेंगे तो मैक्सिमम 100 कोल्डों में अभी सोलर लगा हुआ है मैक्सिमम। तो आज जो 1900 कोल्ड स्टोरेज की आप पे एक नंबर गेम यूपी में खड़ा हुआ है कम से कम, और हम ये कैसे देखेंगे कि अगर सरकार सब्सिडी भी दे रही है तो क्या पेबैक टर्म्स आएंगे? आप उनको एक सिंपल टर्म्स में हमारे कोल्ड स्टोरेज वालों को समझाइए कि भाई ये आपके इतने टर्म्स में बिना नेट मीटरिंग के आपको कैसे तो अब सोलर का इस्तेमाल करना है अपने यहाँ और कैसे निकल के आना है। क्योंकि अभी हमें बहुत सारी बातें जो 4 दिन में माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने जितने भी अनाउंसमेंट्स किए हैं एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी अभी हमें समझने हैं। तो अगर हम एक एक चीज समझते जाएंगे तो आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा 1 जून से वर्किंग और स्टार्ट होगी, बेहतर होगी।
अभी कुछ जो मेनली जैसे जो लोग इंदौर बैठे हैं वो परेशान है, भोपाल बैठे हैं वो परेशान है, गुजरात में अहमदाबाद बैठे हैं वो परेशान है, आगरा में बैठे हैं वो परेशान है। तो कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन और स्टेट कैपिटल सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई है कोविड से। तो जब ये 1 जून से नॉर्मल आएंगे या और 15 जून से नॉर्मल आएंगे, तो दे हैव टू थिंक ओवर कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अनाउंसमेंट्स है उनको कैसे फॉलो करना है, और आप लोगों का जो भी स्कीम है अब उसमें क्या रहेगी, उनको जरा थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया सर। मैं उसका मैं आंसर आपको इस हिसाब से देता हूं कि भाई नेट मीटरिंग जो है वो आपको एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ओवर योर रूफटॉप अलाउ करता है। ऑन एन एवरेज जितना मैं कोल्ड स्टोरेजेस की वर्किंग समझा हूं, 1 महीना छोड़ के बाकी 11 महीना बहुत एक्टिव वर्किंग चलती है। और जिस समय आलू आप भरना शुरू करते हैं और जिस समय तक आलू निकलता है, और उसके बीच में करीब 1 आध महीने का गैप रहता है, मैक्सिमम 1.5 महीना या 2 महीने का गैप रहता है ऑन एन एवरेज गुड परफॉर्मिंग कोल्ड स्टोरेज। नाउ आई वुड टेक इन कैलकुलेशन कि आपके ये 2 महीने छोड़ दीजिए और 10 महीने की परफॉर्मेंस पे अगर आप बात करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो आप 100% कंज्यूम करेंगे। आपकी कोई किसी भी, जैसे अगर एक एवरेज रिक्वायरमेंट में 200 किलोवाट की मानता हूँ और 100 किलोवाट का अगर मैं प्लांट लगाता हूँ, तो वो प्लांट तो मेरा दिन में जो चल रहा है उससे पूरा प्रोडक्शन ले ही रहा है। अगर मैं 400 यूनिट 100 किलोवाट के हिसाब से 400 यूनिट पर डे इंटू 7.5 रुपया नेशनल लेवल पे अगर मैं टैरिफ पकड़ लेता हूँ और मैं इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो लेता हूँ वो 300 दिन के ऊपर ले लेता हूँ, तो भी मैं 9 लाख रुपए बचा लेता हूँ। और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर मैंने 35 लाख ली, उसमें 12.25 लाख मेरे को सब्सिडी आनी चाहिए। तो 12 तो करीब 22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर मैं वैसे पकड़ूं सब्सिडी रिड्यूस करके, तो 2 साल 2.5 साल में मेरा पेबैक, अगर मैं नेट मीटरिंग नहीं भी कर रहा हूं और मैं 10 महीने ही केवल कोल्ड स्टोरेज का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, तो भी आ जाता है। कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान के लिए कोई एड्रेस दीजिए, जयपुर का कांटेक्ट करें, कहाँ करें? प्रवीण जी, कोटा के लिए जयपुर का एड्रेस। बिहार से बता रहा हूँ, बिहार में इसका ऑफिस कहाँ पे है? लगता है प्रवीण जी को आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। प्रवीण जी, मैं सभी मेंबर्स के लिए बता दूं कि अभी प्रवीण जी ने श्रीनाथ एग्रो के जवाब में यही बताया था कि सिडबी की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे पूरी इंडिया के ब्रांच ऑफिसेज, वहाँ के मैनेजर्स और उनके मोबाइल नंबर्स की पूरी डिटेल मौजूद है। तो अगर किसी भी मेंबर को किसी भी सिडबी ऑफिस का नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। ट्रू सर। Any other question relating to SIDBI? Arvind ji, please unmute yourself. सर मुझे आवाज नहीं आ रही है। I got it, Praveen ji. There was another query regarding the contact address for Kota, Jaipur. So I have repeated your previous answer to all the members. Okay. Hello. So we would now like Siddharth Bhandari ji to say a few words and close the meeting. Kapil ji, is Bhandari ji there? सिद्धार्थ जी is there and आपके आने से पहले हमने मुकेश सर को इंट्रोड्यूस किया था। मुकेश सर is entrepreneur since 1983
a very powerful person in electrical engineering field, and he has his own personal experience in cold storage also. So can I request Mukesh sir to say a few words? Mukesh sir, can you hear me? नमस्ते जी, मेरा नाम मुकेश भंडारी है और मैंने ये इलेक्ट्रोकम चालू किया था और ये मेरे लड़के सिद्धार्थ संभाल रहे हैं। सिर्फ मैं एक छोटा सा मेरा एक वो एक्सपीरियंस इसमें था आपके कोल्ड स्टोरेज के अंदर। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं इंदौर से हूँ मैं, और जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर मैंने काम किया हुआ है और मैंने कोल्ड स्टोरेज में काम किया, तो मैंने दूध खोलने का भी काम किया, तो मेरे को पूरा कोल्ड स्टोरेज का आइडिया है। अब आपने और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे कोल्ड स्टोरेज में यूज करेंगे तो हमारे पावर जनरेशन की कॉस्ट भी कम होगी। उसके अलावा जैसे कपिल जी ने कहा कि हम हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अच्छी धरती दे पाएंगे। तो इसमें आप जरूर ये लगाइए कोल्ड स्टोरेज के इसके लिए, ताकि आपका जो डीजल का कंजम्पशन कई बार होता होगा वो कम रहे और आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मैं आज पढ़ रहा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो करीब 28% एनर्जी कॉस्ट होती है। तो वो आपकी एनर्जी कॉस्ट जरूर कम आएगी, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। ये प्रेजेंटेशन की एक कॉपी थ्रू फेडरेशन आप सबके पास भिजवा दूंगा। उसमें सिद्धार्थ सर का भी नंबर है और बाकी कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं, तो शेयर दैट, वी विल इमीडिएटली शेयर दैट। सब कोविड के बाद बन रही हैं ग्लोबली। हमें आपका चाहे सोलर प्रोजेक्ट्स का प्रोडक्शन है, चाहे हमारा स्टोरेज है, चाहे एमएसएमई या कोई भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, नाउ वी हैव टू थिंक ओवर 12 मंथ्स प्रोडक्शन। अभी किसान को भी एक फसल करके नहीं पोसाएगा ना, मेरे को 8-9 महीने का कोई माल रख के आएगा, मेरे को 12 महीने की अपनी प्लानिंग देखनी पड़ेगी। बिकॉज आई हैव टू वर्क नाउ राउंड द क्लॉक आफ्टर कोविड बिकॉज टू कवर अप दिस थिंग। ये जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का गैप जाएगा, ये दिस विल बी मल्टीप्लाइड इन ईयर्स। ऐसा थोड़ी ना ये 3 महीने का नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी को भी हुआ है इंडिया में, चाहे आपकी कंपनी को हुआ है, चाहे किसी एमएसएमई को हुआ है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज वाला है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है। Now they have to work think something else। अब मैं अगर 8 महीने में एक आलू रख के सोचता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी आगे निकाल जाऊंगा, तो now I am the wrong foot। अभी मेरे को 12 महीने की कोई ना कोई प्लानिंग देखनी पड़ेगी। You will also have to think over it। Now company should come up with some formula कि भाई लोग अपने प्रोडक्ट्स को अगर आप कोल्ड स्टोरेजेस में प्रमोट करना है तो उनको भी नए आइडियाज देने पड़ेंगे कि भैया आप अपने 12 महीने ये चलाइए तो वायबिलिटी आएगी। वायबिलिटी 8-9 महीने में किसी की नहीं आ रही। No one is going to survive while working 8 months, 7 months or 9 months, just like earlier। Yes. Now we have to work as in shifts। डबल शिफ्ट भी लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा जिंदगी का फेज खाली छोड़ दिया है और इसको हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। यही सेंट्रल गवर्नमेंट और आगे स्टेट गवर्नमेंट के भी ऐसे ही जो पैकेज आ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर हम जिसको वर्कआउट कर रहे हैं, अरविंद जी के संग, मुकेश जी के संग और भी पदाधिकारियों के संग बैठे हुए हैं और आपके पास अपने भंडारी साहब हैं और वो सब लोग इसको थिंक करें। ये सब ग्रेट गन्स हैं, ये आप सब लोगों पे इतना अनुभव है, तो कम अप विद दीस थिंग्स कि हमें 12 महीने की वर्किंग पे अब सर्वाइव करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि अब हम 7-8 महीने 10 महीने की वर्किंग पे सर्वाइव करें। फ्रॉम मजदूर लेवल, फ्रॉम एक रिक्शे वाले से लेवल से लेके फ्रॉम टॉपेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर, नाउ वी हैव टू वर्क राउंड द क्लॉक ऑल थ्रू द ईयर। सो वी हैव टू कम अप द स्कीम्स कि हमें आपकी स्कीम बहुत अच्छी है जिन रेटों में काम हो रहा है। बस आप 2 चीज देख लीजिए, एक तो सब्सिडी पार्ट को आप अपना पता करके एनएचबी से क्लियरेंस जल्दी कराइए जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपसे जुड़ने में, और एक बैंक के लोनिंग में जो बैंक्स आपको जो सिडबी कर रही है, प्लीज गो
2, 3 मतलब ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स आल्सो कि भाई कौन सा हमको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। और सिडबी को भी मैं भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिडबी से अर्लियर भी जो हमारे कोल्ड स्टोरेज में आज वर्किंग लिमिट मिलती है किसानों को फाइनेंस करने के लिए, हमारी हर महीने ब्याज लगती थी, लेकिन हमने पुशअप किया गवर्नमेंट को, तो आज मेरी पीएनबी से कैनरा बैंक से कई बैंक अब 6-6 महीने बाद ब्याज लगाती है। अब वो मंथली बेसिस पे ब्याज नहीं लगती है मेरी। अभी इस बार बैंक ने साल में एक बार 31 मार्च को ब्याज लगा दी है बस। तो मेरे को हर महीने अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह मैं सिंपल इंटरेस्ट में दे रहा हूँ। तो बैंकों को भी थोड़ा अपने को थोड़ा सा, सर्विस इंडस्ट्री तो है हो ही गई है वो भी, तो सर्विस सेक्टर में आने की वजह से उनको भी थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आना पड़ेगा कि सामने वाले को कुछ मिले। खाली बातों के जमा खर्च से अब काम नहीं चल रहे हैं। अगर कुछ सामने वाले को भी बेनिफिट हो तो इनका भी काम चलेगा। सब बायलैटरल है आपस में, ऐसा नहीं है खाली की बातें कर दी हमने ये देंगे ये देंगे ये देंगे, नहीं। सिंपल फॉर्मूला बनाइए, सिंप्लीफाइड ये, और आप लोग इसको इनिशिएट कराइए कि ये बैंक के कागज भरिए, तुरंत लोनिंग है, तुरंत वहां से सब्सिडी मिलेगी, ये प्रोजेक्ट लगाइए, थोड़ा सा आप इसमें इनिशिएट कराइए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपकी बहुत अच्छी ब्रांडेड अनुभवी कंपनी है इलेक्ट्रोथर्म की, हम फर्नेस भी चला चुके हैं, इंडक्शन फर्नेस, तो बहुत दिनों से, कई 25 सालों से मैं जानता हूं, और मेरी शुभकामनाएं है कि आप उसके बाद जब कोविड के बाद और नए तरीकों से और अपनी ब्रांड वैल्यू में इतना सुधार लाकर इस तरह से हम लोगों के लिए कुछ रिजल्ट्स लेके आएंगे कि वी ऑल विल बी बेनिफिटेड। आपकी सब स्कीम्स के बारे में आज हमारे पूरे मेंबर्स को जानकारी हुई। वी आर थैंकफुल टू यू। और आपके चेयरमैन एमडी भंडारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पूरा इसको समझेंगे। मैं उम्मीद है कि उनके अनुभव का हम सबको फायदा मिलेगा, एंड वी ऑल विल एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ ना कुछ आपके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री जो हमारी पूरी है वो पैन इंडिया बेसिस पर उसको कोई ना कोई फायदा मिले। दैट्स ऑल आई लाइक टू से। थैंक यू फॉर Arvind sir, can I add 1 or 2 points on what Will sir had said? Please. मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई अब कोल्ड स्टोरेजेस आल्सो वुड बी लुकिंग एट 12 months वर्किंग and 24 hours thinking on how to work better, how to work smarter. अगर मैं इसी चीज को 24 महीने पे ले जाता हूँ और अगर मैं उसके ऊपर कैलकुलेट करता हूँ, तो जो मैं 9 लाख की बात कर रहा था कि भाई साल में 9 लाख की बिजली आपकी बचती है 7.5 रुपए के हिसाब से, तो वो 11 लाख पे चली जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ सिटीज में हमारे को लोकल कंपटीशन के अगेंस्ट डेटा मिल पाया कि वेयर डू वी स्टैंड। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इन सिटी ऑफ जोधपुर वी आर approximately 28% higher generating power plants than our competitors. For the want of ethics of sales and marketing, I will not name competitors, but I have major industry players competing against us in Jodhpur, and where we are 28% higher generator than the parallel plant, which means you as cold storage association or you as cold storage owner, आपको ज्यादा बिजली मिलती है बनस्पत किसी और उसके। तो ये कुछ चीजें हैं, और ये क्योंकि हम मुकेश सर के साथ में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझे हैं, इसीलिए ये चीजें हम कर पा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की तरफ एक सीरियसनेस और एक सीरियस व्यू से देखते हैं कि जो हमें डिलीवर करना है, इट हैज टू बी परफेक्ट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, व्हिच इज द रीजन व्हाई वी आर गिविंग गुड सॉल्यूशंस, बेटर सॉल्यूशंस। और जहां तक सर्विसेज का सवाल है, आज मेजर स्टेट्स में हम अवेलेबल हैं। हम इस साल का हमारा टारगेट है कि साउथ इंडिया में इंक्लूडिंग तेलंगाना, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, इंक्लूडिंग कर्नाटका, इंक्लूडिंग तमिलनाडु अपना फुटप्रिंट बढ़ाएं, और ईस्ट में भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाएं। यूपी में वी हैव सम वेरी गुड इंस्टॉलेशंस जिनका आज हम मतलब रिपीट ऑर्डर्स भी मिले हैं, रिपेयर ऑर्डर्स भी मिले हैं,
जो एक अपने आप में टेस्टिमनी है कि हाँ कुछ अच्छा काम करा होगा तभी कस्टमर रिपीट ऑर्डर देता है, और रिपेयर ऑर्डर तो तभी देता है जब ही इज कन्विंस कि नहीं हम जो डिलीवर करते हैं और जो बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं। तो आई कैन assure all the cold storage owner on this platform on behalf of my company, on behalf of my team and my management कि आपको ना सर्विसेज, ना जनरेशन, ना परफॉर्मेंस की तरफ से कोई भी शिकायत, कोई भी बात सोचने को नहीं आएगी। We will give you our best. That I can assure you again on behalf of my team and my management 100%. Thank you. Siddharth ji, please, we would like you to also address to our audience. जी नमस्कार सर, थैंक यू आप सब लोगों को, आपने हम लोगों को इतना टाइम दिया। कपिल जी ने जो प्रेजेंटेशन दी इलेक्ट्रोथर्म के बिहाफ पे आप लोगों ने सुना, आई होप आप सबको ये बहुत यूजफुल लगा हो। एक आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आशुतोष हमारे जो HR मैनेजर हैं उनने आप सब लोगों को एक बुक शेयर की है। मेरी रिक्वेस्ट है, ये लॉकडाउन में मैंने ये किताब काफ़ी पढ़ी है और हम लोग हमारी कंपनी में भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं पर्सनली भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वो किताब का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये लॉकडाउन के माहौल में हम मेंटली भी बहुत स्ट्रेस्ड है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रेस्ड है, और मैं मानता हूँ कि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है, पर आज अगर हमारा फिजिकल बॉडी और अगर हमारा मेंटल स्थिति बहुत अच्छी हो तो आगे कोई भी चैलेंजेस हो हम उसका सामना कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप लोगों को टाइम मिले तो प्लीज ये पढ़िएगा और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सिद्धार्थ जी। एंड मैं मुकेश जी से बोलूंगा लास्ट वर्ड्स बोल के इसको क्लोज करें। थैंक यू अरविंद जी। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोथर्म का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारी इंडस्ट्री को एज ए कोरोना वॉरियर आइडेंटिफाई करा और ये देखा कि किसी भी दिन इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, चाहे वो कोरोना शुरू होने से पहले था या कोरोना के ड्यूरिंग था, और आगे भी आप देखेंगे इंडिया की सप्लाई चेन चालू रखने में, लोगों के घर खाना पहुंचाने में, लोगों के घर सब्जी पहुंचे। और कई लोग इंडस्ट्री को खाली पोटैटो से रिलेट कर लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सारे कोल्ड स्टोर वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक परसेप्शन बदल रहा है और गवर्नमेंट कई तरीकों से इस इंडस्ट्री को देख रही है कि ये इंडस्ट्री जो है ना एक लाइफलाइन है। जैसे आज की तारीख में एक्सप्रेसवेज पे बहुत गवर्नमेंट का फोकस है, उसी तरह कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़े फोकस एरिया की तरह गवर्नमेंट ने ले लिया है। और हमें जान के अच्छा लगा कि कंपनी ने जो है हमारे इस फोकस एरिया को और भी कंपनीज अपने फोकस एरिया की तरफ देख रही हैं। एक चीज जो डिस्कशन में मेरे को एक व्यक्ति ने बताई, कल ही बताई बल्कि, कि सोलर प्लांट जो है अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद लगा लेते हैं तो ये कैश फ्लो में एक बहुत बड़ा सपोर्टर होता है। और आज की तारीख में जैसे कि हमने सब देखा कि कैश प्रिजर्व करना, किसी भी आप वेबिनार में जाइए, कैशोलॉजी में जाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाइए, कि हर जगह ये आ रहा है कि कैश कैसे प्रिजर्व किया जाए व्यापार के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट के जितने भी आप देखेंगे 20 लाख करोड़ के जो स्टिमुलस हैं वो इस बात पे हैं कि एक आम जनता के पास, एक छोटे व्यापारी के पास, एक छोटे फैक्ट्री ओनर के पास कैश कैसे पहुंचे। तो सोलर प्लांट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि अपने लाइफ टाइम में, चाहे वो 20 साल रहे, चाहे 18 साल रहे, चाहे 25 साल रहे, हर महीने आपको कैश आउटफ्लो बचाता है। जो पैसा आपको बिजली बोर्ड को देना है वो पैसा आपको बचाता है। अगर आपने 3 से 5 साल उस प्लांट की किस्त भर भी दी तो उसके बाद 2 दशक तक वो आपके घर में एज ए अर्निंग मेंबर आपके साथ रहेगा। आप जितनी उसकी अच्छी केयर करेंगे उतना ज्यादा कैश वो आपका बचाएगा। सोलर प्लांट, जहां तक कि आज मैं टेक्नोलॉजी देख रहा हूं, केवल एक ही चीज चाहता है कि आप उस पर अच्छे से कपड़ा मार दीजिए ताकि उस पर जो धूल मिट्टी जमी हुई है वो हट जाए, तो सोलर की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। इसके अलावा कोई भी मेंटेनेंस मैंने किसी भी भाई से जिसने सोलर प्लांट लगा हुआ है उससे नहीं सुनी है। तो सबसे बड़ी जो 2 चीजें हैं, मैं सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि सोलर प्लांट को कंसिडर करते हुए इस चीज को भी कंसिडर करें, खाली इकोनॉमिक्स को नहीं। जैसे कि कपिल जी ने बताया कि कितने साल में आपका पैसा वापस आ जाएगा, कितने साल तक वो आपकी नकदी बचाएगा उसके बाद, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप सबको विचार करना चाहिए। उसके अलावा हमारे बीच में
प्रवीण कुमार जी हैं सिडबी से, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स इंडस्ट्री के लिए बताई। हमारे बहुत सारे मेंबर्स को ये योजनाएं नहीं पता थी, और मेरी एक रिक्वेस्ट बस ये है कि जैसे इन्होंने एक चेकलिस्ट की बात कही, मैंने इनकी साइट देखी नहीं है, लेकिन अगर इनकी साइट पे चेकलिस्ट भी हो तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, एक इनके उसमें था कि रेशोज बहुत ज्यादा इन्होंने मांग लिए कि इस व्यक्ति का रेशो, डेट का रेशो ये होगा, डेट इक्विटी का ये होगा, कवरेज रेशो ये होगा। तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बिना चार्टेड अकाउंटेंट के कैलकुलेट ये नहीं हो पाते हैं, और इनफैक्ट जो हम लोग जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी हुई है जिंदगी में भी, वो भी कई बार गलती कर जाते हैं इसमें। तो इस चीज को थोड़ा सा देखा जाए कि व्यापार को ना सर्विसिंग टेक्निकल कम से कम हो। जब आपने प्रॉफिट पे मांग लिया कि मेरी एक कैपेसिटी है, मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, तो आप मेरे प्रॉफिट सर्व करने के रेशो पे ही मुझे लोन देंगे तो ज्यादा इसी रहेगा। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का मतलब ही यही है कि आपने ये जितने रेशोज मांगे हैं, ये सब चीजें बड़ी इंडस्ट्रियां मेंटेन करती हैं। मुझे लगता है जो बड़ा आईडीबीआई आपका जो बड़े भाई थे, उनके पूरी किताब को लेके जो है सिडबी में भी अडॉप्ट कर लिया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटे भाई की तरह सोचिए, और छोटे भाइयों के लिए सोचिए कि जो टेक्निकल चीजें हैं वो कम करी जाएं, ताकि इंडस्ट्री जो है आपसे से ज्यादा संपर्क बना के अपना फायदा उठा सके। और आई लाइक टू थैंक भंडारी सर, मुकेश भंडारी जी एंड सिद्धार्थ भंडारी जी for taking this initiative, and our president Shri Rajesh Goyal ji, you know, for getting more than 100 people on this call. He has been day in day out messaging everyone to come on the call and see what's new for the industry. We also have few more seminars lined up in the same sequence, so whenever the message come, I'll request all the members to join. And I want to thank all the members for their generosity, for their time, and for their listening. Thank you one and all. Thank you Rajesh ji, thank you Bhandari ji, thank you Siddharth ji, thank you Kapil ji, thank you Praveen ji, thank you all.